So dear friends, today our topic is Parkinsonism. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पार्किंसोनिज्म के बारे में. सो देयर आर टोटल 6 पैटर्न्स ऑफ द पार्किंसोनिज्म. तो हमारे शरीर में जब पार्किंसन की बीमारी हो जाती है तो इसके 6 पैटर्न होते हैं. देयर आर टोटल 6 पैटर्न्स. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 1 and 2 are very easy to cure. Easy to cure. पहले और दूसरे पैटर्न को ठीक करना एकदम आसान है. And 5th and 6th is very difficult to cure. 5th and 6th pattern is very difficult to cure. इनको ठीक करना बड़ा कठिन है. And if we talk about the pattern number 3 and 4, so we can consider, okay, good results. So in this way we can better result, good result and least result. तो जब भी कोई फोन करके पूछता है कि भाई हमें पार्किंसन हुआ है, क्या एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाएगा, तो बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि जब तक हमें पता ना हो कि कौन से पैटर्न में आता है हम फाइनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते. So we cannot reply to anyone until and unless we know the acupuncture pathophysiology of the Parkinson disease, because as per the acupuncture all the Parkinson are not same. There may be different pattern. So the first and second pattern which we are going to learn very shortly, they are very easy to cure. Second, third pattern are, so first and second very easy to cure. Third, fourth, okay, that is good. But the fifth and sixth pattern are very difficult. It depends on the patient that on which condition patient has arised and what pattern he has. तो पेशेंट की कंडीशन क्या है, उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसे कौन से टाइप का पार्किंसन हुआ है, हमारे एक्यूपंक्चर की पैथोफिजियोलॉजी के अनुसार, उसके अनुसार उसका प्रोटोकॉल भी अलग होगा और उसी के अनुसार उसी का रिकवरी स्पीड भी अलग होगा. So let's see. So first we'll discuss quickly what is Parkinsonism. तो एक बार हम क्विकली समझ लेते हैं कि पार्किंसोनिज्म होता क्या है आखिरकार. व्हाट इज दिस पार्किंसोनिज्म? ओके, सो कम बैक हियर नाउ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्किंसोनिज्म, the Parkinsonism is a degenerative condition of basal ganglia, of the basal ganglia of the brain. हमारे ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया होता है उसकी डिजेनरेटिव कंडीशन है द बेसल गैंग्लिया सीक्रेटिंग डोपामिन हार्मोन, बट इट गेट डिजेनरेटेड. तो हमारे ब्रेन का जो बेसल गैंग्लिया होता है यह डोपामिन हार्मोन का निर्माण करता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो पार्किंसन होता है, नामक रोग हो जाता है. एंड डोपामिन हार्मोन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर मूवमेंट as well as dopamine hormone is necessary for happiness and pleasure, for happiness and pleasure. So if dopamine hormone is poor or lesser, then the person will suffer with the sadness, with the unwanted anxiety, unhappiness, no smiley face, like that. तो डोपामिन हार्मोन जो हमारे बेसल गैंग्लिया से निकलता है इसके मुख्य काम है हमारी मूवमेंट को प्रॉपर बना के रखना और इसी का दूसरा काम है हमारे मूड को, हमारे प्लेजर को, हमारी हैप्पीनेस को बनाए रखना. तो जब भी डोपामिन हार्मोन सीक्रेशन कम होता है तो व्यक्ति हमेशा एंजाइटी में दुखी और उसके चेहरे पर आपको खुशी का भाव नहीं दिखाई देता. व्यक्ति का चेहरा एक मास्क की तरह होता है, नो हैप्पीनेस. So the Parkinson is the disease is slowly progressive degenerative condition of the nervous system and the basal ganglia. हम सबको पता है कि महिलाएं जहां पर सिंदूर लगाती है मांग में वो बेसल गैंग्लिया का ही पॉइंट है. तो सदियों से उपाय किया गया कि महिलाओं में कभी भी डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन कम ना हो जाए
तो उसे हमेशा स्टिमुलेट करते रहो, रेड कलर लगाते रहो, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ बेसल गैंग्लिया. So we can see in India there are female putting red color sindoor, red color kumkum here, because this is the point of basal ganglia. Because when we are stimulating the basal ganglia, it is secreting proper amount of dopamine hormone, dopamine. And dopamine hormone is responsible for making your mood in the pleasure condition, happiness condition. So since the thousand years, the females are putting the red color sindoor here. Because red color is the color of fire, it is igniting the secretion of dopamine hormone. तो लाल रंग स्टिमुलेटर है जो डोपामिन हार्मोन का सीक्रेशन इंक्रीज करता है. So basal ganglia is the main part of the brain who is responsible for Parkinsonism. So there are total 6 patterns of the Parkinsonism. In all the 6 patterns, most important thing, basal ganglia, degeneration of the basal ganglia in all the 6 conditions. चाहे किसी भी प्रकार का पार्किंसन हो, लेकिन सबसे मुख्य उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है basal ganglia of the brain, basal ganglia of the nervous system. And basal ganglia slowly degenerating, धीरे धीरे उसका डिजनरेशन हो रहा है, तो वो ढंग से अपने हार्मोन्स नहीं बना पा रहा, डोपामिन नहीं बना पा रहा, और यही कारण है कि व्यक्ति को पार्किंसन नाम का रोग हो जाता है. So in the Parkinson patient we can see many things. Number 1, पार्किंसन पेशेंट में और नॉर्मल पेशेंट में क्या अंतर है? देयर आर वेरी बिग डिफरेंस ऑफ द ट्रेमर्स. ट्रेमर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है. सपोज देयर आर 2 पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड बोथ पेशेंट हैविंग ट्रेमर्स. Both patient having tremors. There are 2 patients in front of you. One patient having tremor like this. This is not the Parkinsonism. अगर एक व्यक्ति को इस तरह के ट्रेमर्स आते हैं, so this is not the Parkinsonism. ये पार्किंसोनिज्म नहीं है. These types of tremors may be because of the unwanted anxiety, because of hyperthyroidism, because of hyperfunctions of the adrenal glands, because of the emergency, because of the fear. So this is not the Parkinsonism, this is the tremors. There are multiple tremors. There are multiple tremors in a second. तो जब किसी व्यक्ति को बहुत तेज ट्रेमर्स आते हैं, 1 सेकंड में 10, 15, 20 बार, तो this is not the Parkinsonism. So the main difference between tremors and the Parkinsonism is, in the Parkinsonism, their tremors will be big. 4 to 5 tremors in 1 second. Like see. But the tremors, they are different condition. It's not connected with the Parkinsonism tremors. So this is a very big difference, and this is called coerced tremors. The meaning of coerced tremors means big tremors. That is a sign of Parkinsonism. तो पार्किंसोनिज्म का हमारा जो साइन होता है उसे हम कहते हैं बड़े बड़े ट्रेमर्स आना, ट्रेमर्स के बड़े बड़े झटके आना, उसको हम कहते हैं पार्किंसोनिज्म. सो दिस इज द नंबर 1 साइन. Number 2 sign. The number 2 sign is a very, number 2 sign will be, look at here. The number 2 sign will be, the tremors will be there on the, when hand is on the resting condition. When hand is on the resting condition. रेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब पेशेंट शांति से बैठा होगा तो ट्रेमर चालू हो जाएंगे. आराम से बैठा है, और जैसे ही वो आप उसका हाथ पकड़ोगे, you are going to do something purposefully. Even patient want to hold the mobile. पेशेंट खुद ही अपना मोबाइल पकड़ना चाहता है तो ट्रेमर्स गायब हो जाएंगे. तो when the patient doing some movement purposefully, the tremor will disappear. Suppose I want to hold my mobile.
tremors disappear, and after some time again start. When I want to hold something purposefully, tremors disappear. So when we are doing something purposefully, tremors disappear. But when we are not doing anything, sitting silently, not doing anything, tremor is on. So this is the Parkinson. यानी वो व्यक्ति पानी का गिलास उठाए तो ट्रेमर गायब हो जाएंगे, मोबाइल उठाए, कोई भी चीज को पर्पजफुली करता है तो उसके ट्रेमर चले जाते हैं. और जब व्यक्ति वो आराम से बैठा होता है, रेस्टिंग कंडीशन में बैठा होता है, तो ट्रेमर वापस चालू हो जाते हैं. तो दिस इज द सेकंड साइन ऑफ द पार्किंसोनिज्म. नंबर 3 साइन. नंबर 3 साइन, व्हेन द पर्सन इज स्लीपिंग, ट्रेमर डिसअपीयर कंप्लीटली. जब व्यक्ति सोता है तब भी उसके ट्रेमर गायब हो जाते हैं, और जैसे ही जागता है तो वापस चालू हो जाते हैं. रात को उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, सोते समय से कोई तकलीफ नहीं होती है. द पर्सन इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द नाइट. सो दिस इज द नेक्स्ट साइन. अनदर साइन, पर्सन इज स्टेयरिंग द आईज, because this facial muscle is not cooperating. The person become mask face, no facial expression, no smile, no sorrow, no facial expression. Why? Because dopamine and the basal ganglia is connected with the movement, and there is a no movement of the muscles, so no facial expression. This is the next sign. हमारे पास एक पेशेंट आती हैं अदर स्टेट से ट्रीटमेंट के लिए. बिल्कुल सारी बात. शी इज वेरी इंटेलेक्चुअल. देयर इज नो any difference. The person is still intellectual, is very high on the same intellectual level. There is no difference intellectually. Person is very high. Even I have seen one principal who came to my clinic, and he is suffering with the Parkinsonism, but intellectually he is handling a very big team. तो इंटेलेक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे लोग बड़ी बड़ी टीम को हैंडल करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पर फर्क पड़ता है. उनकी बॉडी पर फर्क पड़ता है. उनका चेहरा मास्क फेस हो जाता है. मास्क फेस. नो फेशियल एक्सप्रेशन, नो फेशियल एक्सप्रेशन, नो स्माइल, नो सोरो, नो हैप्पीनेस, नथिंग. अभी एक पेशेंट है, उसका बेटा के बोलता है कि माँ कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती है. कुछ भी उनको बोलो, हमें लगता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, पता नहीं कोई खुश हो रही है कि नहीं हो रही. So the son is asking, we are not aware whether my mother is happy or not. Whatever we do nowadays, she is not giving any facial expression, not giving any happiness expression, because this is the sign of Parkinson patient. No facial expression and staring the eyes. Staring the eyes. ऐसे आंख घूर घूर के आपको देखेंगे. आपको लगता है आंख घूर के देखते हैं, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि उनकी मसल्स कोऑपरेट नहीं करती है. So the basal ganglia is mainly connected with the movement. So person is not able to make the proper and coordinated movement, whether we talk about the body or we talk about the facial muscles. तो बहुत व्यक्ति की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे हम बॉडी की बात करें, चाहे हम फेशियल मसल की बात करें. उम्र बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है कि पर्सन बिल्कुल घूमना फिरना बंद कर देता है और सिर्फ बेड पे या पलंग पर या सोफे पे बैठा रहता है. After some age, person lose full confidence to walk. So finally he is sitting on the chair or sitting on the bed all the time, not having confidence to walk alone. Okay. तो जब ऐसे व्यक्ति चलते हैं तो पैरों की भी मूवमेंट, उन्हें डर लगता है कहीं गिर न जाएं, और गिर न जाएं इससे बचने के लिए दे वॉक क्विकली, क्विकन द स्टेप्स. जल्दी जल्दी चलते हैं. आपको लगेगा दौड़ रहे हैं, आगे झुक के दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते नहीं है. वो गिरने से बचना चाहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी स्टेप्स लेते हैं. सो द पर्सन इज टेकिंग क्विक स्टॉप टू अवॉइड फॉलिंग डाउन. But they lose confidence if no one is there. They need someone around. Otherwise, they lose confidence, and they don't have confidence to walk on the road because they are having fear to fall down. उनको रोड पर घूमने का डर नहीं आता, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए. और इतना ही नहीं,
किसी को तो हाथों में कंपन आते हैं, किसी को सिर हिलता है, किसी को जॉ हिलता है, किसी को टंग हिलती है, क्विकर टंग. So the different person having different problem as per the where is chi disturbed, where is chi is having problem. हर किसी व्यक्ति को अलग अलग प्रॉब्लम होती है. किसी के सिर्फ हाथ कांपते हैं, किसी की राइटिंग बदल जाती है, और किसी का सिर्फ सिर हिलता है, किसी का जबड़ा हिलता है, किसी की जीभ हिलती है. So the different person having different types of problem. So this is in the Parkinsonism disease, and the main cause is decreased dopamine hormone from the brain. So the person is going to the doctor, and doctor is giving medicine Syndopa, means he is giving medicine containing dopamine hormone. डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट डोपामिन दे देते हैं कि भाई तू डोपामिन की गोलियां खाता रहे. डोपामिन की गोलियां खाता रहेगा तो कब तक खानी है? पूरी जिंदगी भर खानी है. होल लाइफ हैव टू ईट द medicine of dopamine hormone. So let's see now. Look at here. So look at here. Tremor disappeared when the person is doing some movement purposefully. But the person is having some emotional problem, then again tremor starts. Okay. तो हमने देखा है कि लोग अपने कई हमारे पास लोग पेशेंट आते हैं, उनके बच्चे बोलते हैं कि आप इतना कर दो कि हमारे मम्मी पापा अपना काम कर लें, अपने कपड़े पहन लें, अपने बटन लगा लें, इतना कर लें. So many persons just requesting us, do something for us. So at least we can do our own work. We can tie our shoes, we can button our shirt. Only if we are able to do this much, then also we are happy. So many persons are requesting in that way. And sometimes it becomes very difficulty because when they are going to the bank and changing the sign because of the tremor, there is change in the signature. So many practical difficulty is having with the Parkinson patient because every few days the sign is changing because there is a shaking hand. Okay, so let's proceed now and let's see few more things. Okay. So Parkinson patient having some problem like what we have discussed. Okay, so let's proceed for the next step. तो हमने आपको बताया कि पार्किंसन पेशेंट के मुख्य रूप से 6 पैटर्न होते हैं. So pattern number 1 and 2 very easy to cure. Pattern number 3 and 4 is okay, good and average cure. And pattern number 5 and 6 are very difficult to cure. Very difficult to cure. Okay. तो इसमें से जो पार्किंसन पेशेंट की बीमारी के जो 6 टाइप होते हैं एज पर द एक्यूपंक्चर, हम इन्हीं में से किसी ना किसी टाइप में उनको कैटेगराइज करेंगे और इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक ट्रीटमेंट देंगे हम उनको. सो वी आर गोइंग टू गिव द ट्रीटमेंट आउट ऑफ दीज 6 पैटर्न्स. सो एनी पार्किंसन पेशेंट will be belonging to the 6 categories, 6 patterns. So we have to identify the patient is belonging to which category. तो हमें पता करना होगा कि इनमें से पेशेंट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं किस कैटेगरी में आता है और वो जिस कैटेगरी में आएगा हमें उसी का ट्रीटमेंट करना होगा. तो अब अगली बात है कि डायग्नोसिस करने की कि हम पता करें कि कौन सी कैटेगरी का पेशेंट है. तो हम बता देते हैं आपको. So number 1, the first 2 category means the patient is very poor and weak and very tired. तो पहले जो 2 कैटेगरी है वो पेशेंट क्या होता है, इतना कमजोर होता है, एकदम थका हारा, टायर्ड, because these pattern belong to the chi and blood deficiency. जब किसी के सर में chi नहीं होगी, ब्लड नहीं होगा तो उसके ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलेगी, उसे चक्कर आएंगे, डिजीनेस आएगी, शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी, थोड़ा सा चलेगा थक जाएगा. सो द फर्स्ट एंड 2 पैटर्न बिलोंगिंग टू द chi and blood deficiency. Suppose if the person is not having blood, then the brain will not get the blood, then person will suffer with the dizziness. The person is not having chi and blood,
will do little work and will get tired. So the first two pattern means very severe weakness, vertigo, dizziness. It's easy to cure. तो पहले दो पैटर्न को ठीक करना आसान है. इन दोनों पैटर्न में जो पार्किंसन का पेशेंट आता है उसको ठीक करना इस आसान है, क्योंकि ये दो पैटर्न में बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं होता. These two patterns are belonging to the chi and blood deficiency. Chi and blood deficiency, and we know the storehouse of chi is liver, that we know. So ultimately, first two patterns are connected with liver. We have to improve the liver. हमें liver को improve करना है. लिवर क्यों गड़बड़ होता है? पहले दो पैटर्न में का संबंध लिवर से हम जानते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं. जैसे हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आते हैं, तो मैंने क्या बोला, उसकी वाइफ को बोला कि तुम्हारे अंदर लिवर ब्लड की कमी है. So I told to the wife that you are having liver blood deficiency. Okay, I will discuss the sign and symptoms. Okay, and I told to the husband, you have more liver yang. Okay, we will discuss what is the meaning of this. The very strange thing is this: husband and wife both are having mask face, not smiling at all, no expression at all, but both are having different pattern. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को पार्किंसन डिक्लेयर कर दिया है और डॉक्टर ने दोनों को डोपामिन की गोलियों पर रख दिया और दोनों को पार्किंसन है, लेकिन दोनों का अलग अलग पैटर्न है. वाइफ को लिवर ब्लड की कमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव फॉर द लिवर ब्लड डेफिशिएंसी. फीमेल के अंदर लिवर ब्लड डेफिशिएंसी की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उनको हर महीने मेंसेस आता है और उसमें उनका काफी सारा ब्लड लॉस हो जाता है. सो फीमेल आर मोर सेंसिटिव फॉर द लिवर ब्लड डेफिशिएंसी. सो द वाइफ हैविंग लिवर ब्लड डेफिशिएंसी and the husband having liver yang high, so very aggressive all the time, very aggressive and angry man, because liver means anger, liver yang. So both are having Parkinson disease, and today we will discuss about this husband and wife, and it's easy to cure. इनको ठीक करना आसान है. तो पहले जो दो पैटर्न होते हैं उनमें व्यक्ति को बहुत कमजोरी लगती है और उसका संबंध ब्लड और ची की डेफिशिएंसी से है. और हम जानते हैं कि ब्लड का स्टोर हाउस होता है लिवर. सो मेनली हमें लिवर पर वर्क करना है. मेनली वी हैव टू वर्क ऑन द लिवर. डेफिनेटली वी हैव टू वर्क फॉर द ब्लड एज वेल. सिंपल सी बात है कि लिवर को मजबूत कर दो और स्प्लीन को मजबूत कर दो. स्प्लीन को मजबूत करोगे तो ब्लड बढ़ जाएगा और लिवर को मजबूत करोगे तो लिवर ब्लड भी अच्छा हो जाएगा. Just do this treatment, improve the spleen, because spleen is making the blood, and improve the liver because liver is storehouse of the blood, and we can cure this types of pattern. So first two pattern we will discuss in the detail are easy to cure. पहले दो पैटर्न को ठीक करना आसान है, इसको पहचानना भी आसान है. कौन कौन से सिम्टम होंगे जिससे हम इसे पहचानेंगे, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. वो कौन से सिम्टम होंगे, पहले हम गो थ्रू हो जाते हैं पूरे से, क्योंकि पार्किंसन के टोटल 6 पैटर्न होते हैं. देयर आर टोटल 6 पैटर्न ऑफ द पार्किंसन, एंड ऑल द पेशेंट ऑफ द पार्किंसन आर coming out in this 6 pattern. So first two pattern are connected with the chi and blood. तो पहले दो पैटर्न ची और ब्लड से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर ची और ब्लड की कमी हो जाएगी. उनको ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा. ची और ब्लड की कमी को ठीक करना बड़ा आसान है, क्योंकि एक तो हमें स्प्लीन को मजबूत करना होता है जो ब्लड बनाती है, और लिवर को मजबूत करना होता है जो ब्लड को स्टोर करता है. इतना ही करोगे और थोड़ा प्लस माइनस और करके you can treat these two patterns. It's very easy to cure. Now, the third and fourth pattern is average to cure. तीसरे और चौथे पैटर्न वाले पेशेंट को पहचानना बड़ा आसान है. कैसे?
उनको भी पार्किंसन कोई भी हो उसको ट्रेमर्स तो होंगे। तो ट्रेमर से पेशेंट खुद आके बोल रहा है कि मुझे पार्किंसन है, उसे हाथों में ट्रेमर होंगी, या गर्दन हिलती होगी, या जबड़ा हिलता होगा, या टंग हिलती होगी, तो उसके शरीर में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होगा, तभी तो हम उसे पार्किंसन कह रहे हैं। So we can recognize the Parkinson very easily because whether the hand is shaking or the head is shaking or the jaw is shaking or the tongue is shaking, something is shaking. But the second pattern is silent Parkinson. Patient is just sitting like that, no any response, just a mask face and staring eyes. Okay. तो अभी हम पहले तीसरे और चौथे पैटर्न की बात करते हैं। तीसरे और चौथे पैटर्न को पहचानना इसलिए आसान है कि एक पेशेंट ने आके बोला कि मुझे पार्किंसन नाम की बीमारी है, और पेशेंट 120 किलो का, पेशेंट 120 किलो का, तो समझ जाइए द पेशेंट इज बिलोंगिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी मीन्स ओवरवेट, ओवरवेट पार्किंसनिज्म। हमारा टारगेट ओवरवेट नहीं, हमारा टारगेट है कि इस व्यक्ति को पार्किंसन है और इस व्यक्ति के शरीर में खूब मोटापा भी बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इसने खूब माल खाया है, यानी माल खाया है और फ्लेम बढ़ा, इसे हम फ्लेम कहते हैं एक्यूपंक्चर में। द पर्सन इज हैविंग फ्लेम एंड हीट। सो द थर्ड एंड फोर्थ पर्सन मीन्स अनवांटेड टर्बिडिटी, अनवांटेड डर्टीनेस, unwanted collections of the fat, so that is coming under the third and fourth category. हो सकता है उसका वजन 70-75 किलो हो, लेकिन देखने में मोटा होगा। कोई 80 किलो का आदमी फिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फैट कितना, मसल्स कितने। लेकिन कोई 70 किलो का आदमी भी मोटा हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द मसल्स और द फैट। सो इफ द पर्सन हैविंग पार्किंसनिज्म एंड ओवरवेट, देन कमिंग टू द थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी, तो हम थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी का प्रोटोकॉल लगा के इसको ठीक करेंगे। और सबसे बड़ी गजब की बात है, ऐसे पेशेंट को आपने फर्स्ट नंबर का प्रोटोकॉल लगाया तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। उस पेशेंट को आपको थर्ड एंड फोर्थ नंबर का ही प्रोटोकॉल लगाना होगा। और पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि पार्किंसन प्लस ओवरवेट, दैट्स इट। सो दिस इज कमिंग अंडर द थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी। सो हमने समझा कि पहले दो पैटर्न मतलब वीक एंड लिवर एंड ब्लड डेफिशिएंसी कनेक्टेड विद द लिवर। थर्ड एंड फोर्थ पैटर्न ओवरवेट लाइक 80 kg, 100 kg, 120 kg। एक पेशेंट मेरे पास आया पार्किंसन का, उसका वजन है 140 किलो, 140 किलो। मैंने कहा यार इंडिया में तो इतना वजन बढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे बढ़ाया? कहा कि मैं इंडिया में था ही नहीं, आई वॉज इन यूएस। हाँ, मैंने कहा यूएस में 140 किलो तक वजन बनाना थोड़ा आसान है, इंडिया में तो कोई 80-90 किलो का होता है तो ही लोग उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना चालू हो जाता है कि भाई वजन बढ़ रहा है, कुछ करो। 140 kg too much, but with the efforts the person reduced 40 kg weight, become 100 kg and reduce the tremors with the very wonderful efforts. उस पेशेंट ने बहुत एफोर्ट किए, दैट इज फीमेल पेशेंट। उस पेशेंट ने बहुत एफोर्ट किए, 140 किलो वजन को घटाकर 100 किलो तक लाई और पार्किंसन पर अच्छा काम किया। ट्रीटमेंट के माध्यम से उसने भी पार्किंसन को 80 से 90% ठीक कर लिया। सो थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी मींस द कैटेगरी ऑफ द ओवरवेट, very easy to find out. Now coming to the fifth category means the category is highly intellectual person, leader person. They are very thin, very thin. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर के इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे, लेकिन पांचवें नंबर के लोग कुछ ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, पतले होते हैं, दुबले पतले। तो अगर आपको कोई दिखे एकदम दुबला पतला विद द पार्किंसनिज्म, सो इट इज कमिंग इन द फिफ्थ कैटेगरी, इट्स डिफिकल्ट टू क्योर। ये डिफिकल्ट टू क्योर है, इसको ठीक करना बाकी की तुलना में कठिन है। सो द फिफ्थ कैटेगरी मीन्स थिन फ्लेक्सिबल person
having Parkinson. And remember one thing, the Parkinson never affect the intellect of the person. Now, the sixth pattern and the last and final pattern, also very difficult to cure, that is called generalized Parkinson. Whole body is affected. Whole body is affected. Okay, so we have learned 6 types of pattern. Okay, tell me, what is first and second type? आप कैसे पहचानोगे फर्स्ट एंड सेकंड टाइप को? अभी तो हम और डिस्कशन करेंगे. इतना तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइप मतलब ची एंड ब्लड की कमी. The first and second type means the deficiency of chi and blood. Fine, good. And the third and fourth type Parkinson means, overweight. And fifth means very thin patient, very thin. And sixth means generalized Parkinsonism, that is called internal wind, generalized Parkinsonism, and there are lots of internal wind. So there is too much Parkinson. It's very, very difficult to cure. So fifth and sixth pattern are very difficult to cure. Let's start with the pattern 1 and pattern 2. Pattern 1 and pattern 2. तो जब भी आप पार्किंसन के किसी भी पेशेंट को देखेंगे, वो इन 6 कैटेगरी के बाहर नहीं जाएगा. थोड़ा मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन रहेगा इन 6 कैटेगरी में. और आपको जो प्रोटोकॉल लगाना होगा, अभी हम जो डिस्कस करेंगे, इनमें से एक प्रोटोकॉल लगाओगे तो वो ठीक हो जाएगा. लेकिन डायग्नोसिस करना इसलिए जरूरी है कि आप सब पार्किंसन वालों को एक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. द सेम ट्रीटमेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल to all Parkinson patient. No. Okay, so let's proceed now. अब हम आगे समझते हैं. Okay, so look at here. So few symptoms we already discussed. ये कुछ symptom हमने लिखे हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. So we can see here, this is the mask face. No any facial expression. Because this facial muscle are not cooperating. आपको मालूम होगा, जब हम फेशियल योगा की क्लास ले रहे थे, हमारी कुछ 5 या 7 दिन की फेशियल योगा की क्लास हुई थी, तब हमने ये बात की थी कि फेशियल मसल को ही आप अलग अलग तरह से स्टिमुलेट करके आप अपने फेस की चमक भी बढ़ा सकते हो और पूरे शरीर की चमक भी बढ़ा सकते हो. सो फेशियल मसल्स आर नॉट ओनली फॉर द फेस. If you are doing daily exercise of the facial muscle, you can improve the glow on the face as well as in the body. So the first sign of the Parkinson patient become mask face. Now we are moving to the first category. The first category of the Parkinson patient is the chi and blood deficiency, creating Parkinsonism with the tremor of the limbs. Remember main thing, tremor in the limbs. आपको क्यों याद रखना है कि ट्रेमर इन द लिम्स? क्योंकि अगर किसी का सिर हिलता है तो वो और दूसरा पैटर्न है, पहला पैटर्न नहीं है. इफ द shaking, if the tremor in the head region, if there is a tremor in the head or jaw region, so that will not belong to the first category. The first category means just a Parkinson and tremor in the limbs. जब हमारे केवल लिम्स में पार्किंसन का इफेक्ट होता है और हमारे चेहरे पर नहीं होता, हमारे जबड़े पर नहीं होता, हमारी जीभ पर नहीं होता, तब हम उसे फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं. So we are keeping it in the first category. Now, तो पहले कैटेगरी का पेशेंट आपके पास आएगा और बोलेगा मुझे पार्किंसन है, बट नो ट्रेमर हियर, नो ऑन द टंग, नो ऑन द जॉ. चेहरे पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि चेहरे पर इफेक्ट आ गया इसका मतलब हो गया
कि बिंड बहुत बढ़ गई है और बढ़ी हुई बिंड ऊपर हेड तक पहुंच गई है, तो वो फिर हमारी दूसरी अवस्था में आ जाएगा। सो इफ द पार्किंसन इज जस्ट लोकेटेड ऑन द आर्म, ऑन द लिम्स, इट मीन्स this is belonging to the first category, because if it is going till the head region, so shaking of the head starts, then it is coming in the second category, which we are going to discuss after this. Okay, now तो अभी हम जा रहे हैं, तो हमने देखा ये फर्स्ट कैटेगरी है। द कैटेगरी नंबर 2, the category number 2, this is also the chi and blood deficiency. This is also the chi and blood deficiency. And liver is, suppose here, look at here. This is the glass. And in the glass, you are having water. In the glass, you are having water. Now, suppose if there is some water, now there is a deficiency of the water in the glass, then in this area, in this empty area, what will come? Wind will come. What will come in this empty area? The wind will come. तो क्या होगा कि जैसे आपने एक ग्लास को आधा खाली कर दिया, तो जो खाली वाले स्थान में क्या आ जाएगा? खाली वाले स्थान में विंड आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी में ऐसा नहीं होता। पहली कैटेगरी में ग्लास तो खाली होता है, लेकिन वो विंड बढ़ती नहीं है। बट इन द सेकंड कैटेगरी विंड बढ़ जाती है। In the fourth category, there is a deficiency of the chi and blood. But in the second category, what is happening? In the deficient area, there is a wind is rising. Wind is rising in the deficient area. अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो गया कि पहले केस में भी तो ग्लास खाली था, उसमें विंड बढ़ना चाहिए थी, तो दूसरे में क्यों बढ़ रही है? Tell me that. You can ask. Because there are two glass. In one glass, water is less. In another glass, also water is less. But I am telling, in this glass, wind is not rising, but in this glass, wind is rising. Why? Why is this so difference? The difference is this, suppose कि इसके भी ब्लड की कमी और इसके भी ब्लड की कमी हुई, लेकिन इस व्यक्ति ने गुस्सा किया, इस व्यक्ति ने खट्टा खाया, इस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जिससे लिवर में विंड बढ़े, then it will increase the liver wind. So this person is normal, but the second person, what is doing? Because of this nature of this person is little aggressive, doing anger or eating sour food or doing something which is increasing the power of wood element, wind. So on the one side, there is a liver wood deficiency. On the other side, wind is rising. Wind is rising. मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि हमने देखा है कि हमारे पास एक फीमेल पेशेंट आती हैं, उनको पहले बहुत सालों तक लिवर ब्लड की कमी थी, तो उनको चक्कर आते थे, उनको कमजोरी लगती थी, उनको थोड़ा सा एकदम डिजीनेस जैसा होता था। अब बाद में क्या हुआ कि जरा सा भी कुछ काम करते थक जाते थे, लेकिन सडनली क्या हुआ कि जब लिवर ब्लड डेफिशिएंसी कई सालों तक बनी रही, अब धीरे धीरे करके विंड भी बढ़ गई, तो चेहरे पर अब उनके नमनेस चालू हो गई। नमनेस इज आल्सो विंड। सम पर्सन इज गेटिंग नमनेस, सम अदर पर्सन will get the tremor. Whether the tremor or the numbness or the output of the wind, so it depends. There are two persons. One person will suffer with the liver blood deficiency, another person will also suffer with the liver blood deficiency, but with the time wind also rising. Now wind will go in the head region. Now head is shaking. Head is shaking. Definitely mental trauma also may increase the wind. हमारे पास एक पेशेंट था, वो एक फीमेल पेशेंट, उसको अपने हस्बैंड से कुछ प्रॉब्लम थी और रोज लड़ाइयां होती थी, क्वेरल्स होते थे। तो कई सालों के बाद
उसको ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ द मेंटल ट्रॉमा initially she was the patient of liver blood deficiency, but after that she was having lots of numbness over the face. Okay, so numbness means paralysis of the face. So she was lucky that she was having paralysis over the face, but the same thing happening in the age of 50 or 55 or 60 or 65 or 70, then the person might get tremors, because in the young age we are having good chi. जब हम यंग होते हैं तो हमारी ऊर्जा अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी के अंदर लिवर ब्लड की कमी हो जाए 50 साल के बाद, तो उसको फिर नमनेस ज्यादा नहीं आती, डायरेक्ट ट्रेमर आते हैं. So now, okay. So the second patient, the second pattern which I'm talking about, the second pattern means the chi and blood deficiency. And liver is producing liver bind. Why? Maybe because of mental trauma or physical trauma, or maybe because of the nature of the person. So now it will affect the head region, tremor in the head. So tremor in the head, tremor in the jaw, tremor in the tongue, tremor anywhere in the head region. Any problem in the head region means the person belonging to the second category. अब वो दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करता है. अब आपको क्या करना होगा? तो पहली कैटेगरी में तो हमने क्या ट्रीटमेंट किया? सिर्फ लिवर और स्प्लीन को ट्रीटमेंट दे दिया, काम चल गया. क्योंकि लिवर और स्प्लीन को ट्रीटमेंट दिया तो लिवर ब्लड बढ़ जाएगा. अब दूसरी कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बिंड भी निकालनी पड़ेगी. इतना ही अंतर है बस. So in the first category, what we have to do the treatment, because it's only the liver, it's only the blood and chi deficiency. So we can improve the blood by stimulating some point of the liver, by stimulating some point of the spleen, because spleen is making the blood and liver is storing the blood. But in the second category, we have to do this, means we have to treat the liver, we have to treat the spleen to make the blood, to store the blood, plus added we have to expel bind out, because there is excessive bind over the face. ये डिफरेंस होगा, इतना ही अंतर होता है पहली और दूसरी कैटेगरी में. तो दूसरी कैटेगरी वाले व्यक्ति ने ट्रॉमा के कारण या फिर अपने नेचर के कारण, किसी किसी व्यक्ति का नेचर ही होता है कि जरा जरा सी बातों में वो एकदम से उसका मूड घूम जाता है, तो हमें उसकी बिंड भी निकालनी पड़ जाएगी. तो चलिए अब हम पहले इन दो कैटेगरी का ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, फिर हम तीसरी, चौथी और पांचवी और छठवीं कैटेगरी की बात करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ दीज फर्स्ट टू कैटेगरीज. इट्स वेरी सिंपल एंड यू विल अंडरस्टैंड very easily, I'm sure. So look at here. So this is the category number one. So the first point will be CV4, because CV4 is the very good point for nourishing the blood, as well as CV4 is the very good point for nourishing the blood. CV4 हमारे शरीर का वो बिंदु है जो हमारे ब्लड को नरिश करता है. CV4 is the meeting point of spleen, liver and kidney. So the first point will be CV4 to nourish the blood. We are talking about the first treatment because we just have to increase the blood. And second, we are taking liver 8 point, because liver 8 is the mother tonification point of the liver, the water point of the liver. So liver 8 is the mother tonification point. We know this is the liver meridian. So liver 1, liver 2, liver 3,
liver 4 and liver 8. So blood and this is the water. So liver is the blood and liver 1 is the blood. Who is the mother? Mother कौन है? Liver 8 is the mother. Liver 8 is the mother. So in this 5 element cycle, liver 8 is the mother who is giving birth to the son. And we know mother is always nourishing the son. Nourishing the son. तो लिवर 8 मदर है, लिवर 8 लिवर की वाटर पॉइंट है. तो जब हम लिवर 8 को लगाएंगे तो लिवर को नरिश करेगी और जब लिवर को नरिश करेगी तो लिवर का ब्लड इंप्रूव हो जाएगा. सो द सेकंड पॉइंट विल बी liver 8. And the third point, we have to improve chi and blood both. So we are improving chi and blood both. We know if you want to make the blood, then you have to stimulate spleen. And the best point of the spleen is the spleen 6 and the stomach 36. They are the very good tonification point. They are very good blood making points. अब हम स्प्लीन 6 और स्टमक 36 के द्वारा नए ब्लड को भी बना सकते हैं और ऊर्जा को भी टोनिफाई कर सकते हैं. इतना सा ट्रीटमेंट करना होगा. Only 4 point bilateral, only 4 point, because CV4 in the central, so only 3 point bilateral will cure the disease very nicely. So this is the pattern number 1. इसे हम कहते हैं pattern number 1. एक बार हम आपको इनकी लोकेशन दिखा देते हैं क्विकली. लेट्स सी द लोकेशन क्विकली फॉर दीज पॉइंट्स. तो पहले हम बात करते हैं सीबी मेरिडियन की. लेट्स टॉक अबाउट द सीबी मेरिडियन. दिस इज द सेंट्रल लाइन मेरिडियन दैट इज कॉल्ड सीबी मेरिडियन. फ्रॉम द नेवल रीजन, फ्रॉम द नेवल रीजन इफ वी गो 4 फिंगर डाउन, 1 2 3 and 4. From the navel, if we go 4 finger down or the 3 chun down, because 4 finger is equal to 3 chun, then we are reaching on the CV4, and CV4 is very good point to nourish the blood. तो अगर हम नाभि से 4 अंगुल नीचे जाते हैं या 3 चुन नीचे जाते हैं तो हम CV4 पर पहुंच जाते हैं और CV4 हमारा बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ब्लड को नरिश करने वाला. नाउ if we talk about the same point in the sujok, I will tell you shortly about the sujok points. तो हमने कर दिया. अब हम बात करते हैं लिवर 8 की. लिवर 8 is found on the liver channel. So this is the knee. ये हमारा घुटना है. So this is the knee joint. This is the crease of the knee. This is the knee crease. And we are having liver 8 point here. This is the liver 8 point. Liver 8 is mother tonification point and very good tonification point. So liver 8 is nourishing the liver blood. हम liver 8 की मदद से liver blood को nourish कर सकते हैं. Now, the third and fourth number point. The third and fourth number point. So let's talk about the spleen 6, which is the wonderful point to nourish the spleen, nourish the making the blood. Spleen काम करती है जैसे रसोई घर रसोई में काम करता है. तो हमारे मीडियल मेल्युलस से अगर हम 3 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें स्प्लीन 6 मिलती है. सो फ्रॉम द मीडियल मेल्युलस, from the medial malleolus, if we are going 3 chun up, then reaching on the spleen 6, which is the very good point to improve the spleen, जो हमारे spleen को improve करने का एक बहुत ही बेहतरीन point. Now, at last, the fourth and last number point is stomach 36. So this is the location of stomach 36. We are already aware with this point. ये हमारा stomach 36. So from the knee joint, from the knee eye,
from the knee I, if we are going 3 chun down, अगर नी आई से हम 3 चुन नीचे जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं स्टमक 36 पर. So stomach 36 will be the 4th number point. In this way, CV4 on the abdomen, liver 8 on the knee crease, spleen 6 near the ankle joint, and stomach 36 near the knee joint. Just tonify 4 point and improve the blood and improve the chi and work for the Parkinsonism. तो इन 4 बिंदुओं की मदद से हम हाथों के ट्रेमर्स को कम कर सकते हैं. सो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोटोकॉल है पार्किंसोनिज्म का. अभी इन्हीं पॉइंट्स को हम आपको क्विकली हाथों में बताते हैं. लेट्स सी द पॉइंट्स, द सेम पॉइंट क्विकली इन द सुजोग. नाउ लेट्स सी नाउ. So look at this image. Suppose we want to stimulate the stomach 36. So we can put the magnet, Biol magnet, or we can put the seeds like the fenugreek seed. तो हम मेथी का दाना लगा सकते हैं या बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं, टॉनिफिकेशन कर सकते हैं. So this is the stomach meridian. These are the 3 joints. As per the sujok, this is the leg region and this is the knee. So below the knee, this will be the stomach 36. Stomach 36. So you can look at the chart and put the point here, put the methi seed here. तो हमारा पहला बिंदु होगा जिसे हम stomach 36 कहते हैं. अब बाकी है हमारे 3 और बिंदु, CV4, spleen 6 and liver 8. So let's go to the palmar side of the palm. अब हमारे हाथों की palmar side में जाते हैं. Let's come back here. So let's talk about the liver meridian. So this is the liver meridian. This is the liver meridian. You can see the chart and you can find out the liver meridian in the palm. And this is the knee joint. And the middle point will be the liver 8. ये हमारा होगा liver 8. The midpoint will be the liver 8. You can see the chart and put the methi seeds, fenugreek seed, or you can put the biol magnet here. तो हमारा दूसरा बिंदु होगा. इस बिंदु के माध्यम से हम लिवर का ब्लड बढ़ा सकते हैं. We can nourish the liver blood. Now, let's move to the next point, that is spleen 6. So where is the spleen meridian? So this is the spleen meridian. Spleen meridian is going like this. This is the spleen meridian. So starting from this point, and this is the location of spleen 6. So you can see the chart and you can put the point. In this way you can see spleen 6 and liver 8 will be on the same line. तो हम यहाँ पर spleen 6 को लगा सकते हैं. दोनों पॉइंट को टॉनिफाई करना होगा. We have to tonify both the point, or we can put the methi or fenugreek seed. Now look at, this is the CV meridian. Because CV meridian is starting from the genitals. So these are the 2 legs and this middle part is genitals. So the CV meridian is coming like this, and this is the location of CV4 in the sujok. So we can put the methi seeds, fenugreek seed. So 3 point will be this side and 1 point will be other side. In this way we can put the 4 point and we can improve the blood, nourish the liver, nourish the body with the blood and chi. तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम लिवर और ब्लड को ची कर इंप्रूव कर सकते हैं. आगे चल के आप पाओगे, आगे चल के आप देखोगे कि हम सिर्फ लिवर और ब्लड को, लिवर के ची और ब्लड को इंप्रूव करके सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. वी कैन क्योर 100 disease just by curing the chi and blood, just by curing the chi and blood.
So all the points we have to tonify because we are working on the deficiency pattern. Now, अब हम बात करते हैं पैटर्न नंबर 2 की। उसमें एक ही काम एक्स्ट्रा करना है क्योंकि हमने समझा था what is the difference between first and second pattern. The difference is only this: in the second pattern we have to expel the wind, because in the second pattern, because of the nature of the person, the wind is very high. Wind is very high. तो अब हमें दूसरे व्यक्ति में क्या करना है? हमें बस इतना सा काम करना है कि दूसरे व्यक्ति में, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का नेचर बड़ा अजीब टाइप का है, थोड़ा एंग्री मैन है, मन शांत नहीं है, हो सकता है गुस्से वाला हो, उसका नेचर थोड़ा सा ऐसा है कि उसके अंदर विंड बढ़ रही है और बढ़ी हुई विंड हेड तक आ रही है. So the second person also suffering with the chi and blood deficiency, but the person is having little different nature, maybe having not calmness in the mind, maybe angry man. Because of that, liver blood is increasing. So we have to do two more work. Number one, calm the mind. How can we calm the mind? We can calm the mind with the help of Heart 7. Heart 7 is very good point for calming the mind. And how to expel the wind? Liver 3 is the wonderful point, and never forget liver 3 for the Parkinson patient. Liver 3. Liver 3 is the very good point for expelling the wind out. लिवर 3 हमारी विंड को निकालने का सबसे बेहतरीन पॉइंट है. So the second disease pattern. Now let's talk about the second pattern. अब हम दूसरे पैटर्न की बात कर लेते हैं एक बार. So let's see now. In the second pattern, what we have to do the same treatment, exactly same. Like, because in the second pattern, chi and blood deficiency, but liver is producing liver wind. So there is a tremor in the head. तो दूसरे पैटर्न में हमें थोड़ा सा विंड को निकालना होगा. तो हम काम तो वही करेंगे जो हमने पहले किया था. Nourishing the blood with the CV4, nourishing the liver blood with the liver 8, tonify the chi with the spleen 6 and stomach 36. Now, expel the wind with the liver 3 and liver 14. Liver 14 is the alarm point of the liver. So expel the wind with the liver 3. Now my question is there, how can we expel the wind with the liver 3? हम liver 3 से wind को expel कैसे कर सकते हैं? So this is the liver channel. Liver 1, liver 2, liver 3, liver 4 and liver 8. So liver is a wood and liver 1 is also the wind, then the fire, then the earth, then the metal and then the water. So now, if the liver wind is plus plus plus, so we can use the counteracting cycle, and with the help of counteracting cycle or with the help of insulting cycle, we can reduce the tremor. हम counteracting cycle के माध्यम से या फिर हम insulting cycle के माध्यम से हम liver wind को कम कर सकते हैं. So we will sedate the liver 3 and we will able to sedate the liver wind. So we are using liver 3 and liver 14 sedation in the second pattern to expel the liver wind. To expel liver wind. Now, on the other side, what we are doing, और दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं? और हम हार्ट 7 को हम हार्ट 7 को क्या करेंगे? हार्ट 7, because we also have to calm the mind. We also have to calm the mind. So heart 7 is also called Shenman point. Heart 7 is also has been considered as a Shenman point. So what we are doing on the other side, we are
for the calming mount, we are stimulating the heart 7 and heart 5 point. ट्रीटमेंट कंप्लीटेड. तो हमने ये ट्रीटमेंट किया और बिंड को निकाल दिया और मन को शांत कर दिया, तो हमारा सिर का हिलना भी कम हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड पैटर्न फॉर इफ द ट्रेमर इन द हेड रीजन. सो रिमेंबर वन थिंग कि अगर किसी का सिर हिलता है, किसी का जबड़ा हिलता है, किसी के अंदर इंटरनल बिंड बढ़ गई है, लिवर 3 के बिना काम नहीं होगा. लिवर 3 इज द मेन पॉइंट. और अगर पर्सन का नेचर थोड़ा सा अलग टाइप का है, शांत नहीं है, तो आपको हार्ट 7 को भी स्टिमुलेट करना होगा. सो वी नो नाउ वी एंड बिकॉज द पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग टू मच deficiency of the chi and blood, so we are not sedating the heart 7, we are tonifying the heart 7. पर्सन को पहले से ही ऊर्जा की इतनी कमी है कि वो व्यक्ति को और हम कमजोर नहीं करना चाहते, इसलिए हम हार्ट 7 को टोन करेंगे. So this is the location of heart 7 that we know. This is the location of heart 7. And one chun proximal, this is the location of heart 5. So heart 7 and heart 5, these 2 points. Heart 7, heart 5. Difference will be one chun. So we are tonifying 2 points. और अगर हम लिवर 3 और लिवर 14 की बात करते हैं, सो लिवर 3 पॉइंट लोकेटेड इन द फीट दैट वी नो. लेट्स सी नाउ. So look at the location of liver 3, which is 2 chun proximal from the beam margin. This point is 2 chun proximal from the beam margin, that is liver 3. Liver 3 is the very good point for Parkinsonism. So we are sedating this. और liver 14 कहाँ होता है? Because liver 14, we can do the acupressure, because this is little danger point. Let's see now. This is the liver 14. हमारे नाभि से 6 chun ऊपर होता है CB14. So from the navel, if you go 6 chun up, then this is the CB14. At the level of CB14, we are having liver 14 point. Liver 14 is below the 6th rib, 6th intercostal space. So this point located at the level of CB14 in the nipple line. तो जब हम liver 14 को एक्यूप्रेशर करते हैं, तो हम liver bind को एक्सपेल कर सकते हैं. So for expelling the bind, we are using liver 3 and liver 14 point, these 2 points. Okay, so let's see in the sujok. If you want to see in the sujok, so let's see now. So this is the liver meridian. Let's see here. So this is the liver meridian, and this is the location of liver 3. So we have to sedate this point. इस point को हमें sedate करना होगा. And the last point of the liver meridian, because we know the liver meridian is coming like this, you have to go through in the arm, palm, and this is the location of liver 14, because as per the sujok, this is the chest cavity. So this is the liver 14, we have to sedate liver 14. तो हमें इन 2 बिंदुओं को सेडेट करना होगा, लिवर 3 को और लिवर 14 को. नाउ दिस इज द हार्ट मेरिडियन. ये हमारा हार्ट मेरिडियन है, एंड वी कैन सी हियर. सो दिस द हार्ट 7 एंड दिस द हार्ट 5. सो हार्ट 7 एंड हार्ट 5 we have to tonify. So this is the difference, and with the help of this we can tonify first 2 pattern. So I think enough for today. अब हम आगे की बात परसों करेंगे. अब देखिए, ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउ राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग, बिकॉज इफ यू कंबाइन द पॉइंट ऑफ स्काल्प, देन वी कैन यूज DU20, we can use DU24, we can use governing vessel 20,
there are many points can be used, but these what we have discussed are the main point for Parkinsonism. ये मुख्य बिंदु हैं। अगर आपकी पुरानी स्टडी है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि गवर्निंग वेसल 20 का भी प्रयोग करते हैं, आप करिए, लेकिन सारे पॉइंट, हम बहुत सारे पॉइंट एक साथ ना नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि अगर आप सारी की सारी नॉलेज एक साथ लगा दोगे तो बहुत सारे पॉइंट ऐड हो जाएंगे। आपका DU24 भी हो जाएगा, DU20 भी हो जाएगा, आपका गॉल ब्लैडर 20 भी हो जाएगा। So you can apply this protocol. Even you can add few more point, 1 or 2 more point. That is okay, because with the 6 point, because these are only how many points? Only 4 and 8 points. Definitely you can use 2 more point, क्योंकि 8 ही तो बिंदु है। पहले प्रोटोकॉल में सिर्फ 4 पॉइंट है और दूसरे प्रोटोकॉल में 8 पॉइंट है, आप 2 पॉइंट और जोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे परसों। ठीक है जी सुमन जी, या अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट। थैंक यू सर सो मच। वेलकम सो मच। सर मैंने कल एक ट्रीटमेंट किया, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बताइए बताइए। कल मेरी बड़ी वाली जिठानी थी, वो गिर गई थी, उनको बहुत पेन हो रहा था, उनको चोट लगी थी GB1 के पास। हाँ, तो वहाँ उनको बहुत पेन था, वो बैठ भी नहीं पा रही थी। मतलब गॉल ब्लैडर बन और गवर्निंग वेसल बन? GB1 के पास। अच्छा, मतलब टेलबोन के पास में? टेलबोन के पास। हाँ। तो मैंने उनको संगठन जैसे चोट लगी, 2-3 घंटा बाद मेरे को पता चला, तो मैंने उनको बायलेटरल दिया, लिवर-3 एंड LI4 उसको सिलेक्ट किया। हाँ। और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर लगाया उनको। अच्छा जी, कहाँ पर? सुजोग में। सुजोग में सर, मैंने वहाँ पर ब्लैक कलर लगाया, मतलब शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गई। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और फिर वहाँ पर मैंने उनको थोड़ा बर्फ का सेक दिया। बहुत अच्छा, वेरी आइस पैक किया थोड़ा सा। और फिर बाद में कुछ मेडिसिन लगाई वहाँ पर, जो दर्द को खींचने वाली। तो शाम तक बिल्कुल अपने आप नॉर्मल बाथरूम जा रही है, अब उनको कोई पेन नहीं। वंडरफुल। तो देखिए, आपने फोरगेट का प्रयोग कई पेशेंट पे कर लिया, क्योंकि पुरानी भी आपकी हिस्ट्रीज हमने सुनी है। तो बहुत अच्छा, आपने फोरगेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूजफुल फॉर द पेशेंट हैविंग एनी टाइप्स ऑफ इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी, फॉल डाउन इंजरी, है ना, बहुत अच्छा है। तो फोरगेट को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि लिवर-3 और LI4 बड़े गजब के पॉइंट हैं। इसलिए LI4 को बेस्ट पेन किलर पॉइंट कहते हैं, और लिवर-3 को बिंड को निकालने वाला बहुत शानदार बिंदु कहते हैं। बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। सर और कोई पॉइंट नहीं लगाया उनको? और कोई पॉइंट नहीं लगाया? वेरी गुड। नहीं, और कोई पॉइंट नहीं लगाया सर, बस ये 4 पॉइंट ही लगाए थे सर। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, हैप्पी टू सी यू, हैप्पी टू लिसन दिस। या सर आज 8:30 बजे रिजल्ट निकल रहा है क्या? पता नहीं, अभी कुछ हाँ, मैसेज आया है, मैसेज में आया, क्योंकि हम तो उसमें, मैं देखता हूँ बहराम जी का कोई मैसेज है क्या, एक ही मिनट। मतलब जो हमारा जो मुख्य ग्रुप है ना, हो सकता है कि मैंने तो देखा नहीं मैसेज, और देख लेते हैं, आ जाएगा तो अच्छा है, मिठाइयाँ बट जाएंगी, फिर तो सारी मिठाइयाँ बटनी। थैंक यू सर। क्योंकि बहराम जी ने पहले ही बोल दिया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेल, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मतलब जो व्यक्ति फेल होगा ना, वो बाकायदा उसको फोन करेंगे, भाई तूने आखिर कैसे फेल हुआ, तो वो मुझे बता। सर हम लोग के तो 100% आंसर राइट थे, 15 मिनट में एग्जाम। मुझे पता है कि आपको, अगर आपके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट होता कि अगर आपको बोला जाता कि 2 घंटे का लॉक पीरियड है, लॉक पीरियड अगर आपके लिए 2 घंटे का कर दिया जाता ना, तो बहुत बड़ा पनिशमेंट होता, क्योंकि 15 मिनट में, 20 मिनट में लोगों ने बाकी तो टाइम पास किया, रीचेकिंग है ना। 15 मिनट तो हो गया, 25 मिनट लगा रीचेकिंग में, एग्जाम देने में, और वो भी इतना आराम से दिया कि लगता है कि इतना टाइम है तो कम से कम अच्छे से पढ़ के दे। हाँ, तो मैंने तो ग्रुप में लिखा था कि अगर आप 3 घंटे का टाइम दे रहे हो तो 500 क्वेश्चन दो, 50 में कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर सो मच, इतनी मेहनत की, इतना अच्छे से पढ़ाया कि हम कल सबकी खुशी देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम देने के लिए मतलब इतना दिमाग खुल गया कि हम किसी पेशेंट को भी, मैंने तुरंत उनको मतलब फोरगेट लगाया, और शाम तक उनको इतना आराम हो गया, तो दिस इज द वंडरफुल।
बस यही चाहिए ना, यही चाहिए कि पेशेंट कुछ बोले ना। जैसे आपने एग्जाम में 4 ऑप्शन देखे ना, फट 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 दिमाग में आता गया, ऐसे कुछ समय पेशेंट जैसे ही आएगा ना, बोलेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, फट से दिमाग में आ जाएगा कि 4 कारणों से चक्कर आते और इसका कारण ये है, बात खत्म। अभी तो समझ में नहीं आता चक्कर आ रहे हैं, अब क्या करें, क्या चक्कर, क्योंकि चक्कर तो ऐसे क्या होता है, आगे चल के हर पेशेंट के साथ ऐसा ही होगा कि पेशेंट ने जैसे ही अपना पुलंदा खोला ना बीमारियों का, वो 2 मिनट बोलेगा और आप डायग्नोसिस और प्रोटोकॉल लिख दोगे, फिर तो बस पेशेंट को सुनोगे, क्योंकि सुनना भी पड़ता है ना, ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सर, सर थैंक यू। तो चलिए अभी क्लास को समाप्त करते हैं, अब हम मिलते हैं परसों। टीसीएम की क्लास तो एडवांस की क्लास हमारी एक एक दिन छोड़ के होती रहेगी। श्वेता जी आपको भी, आपने भी है? हाँ श्वेता जी बोलिए। हेलो। हाँ श्वेता जी। सर एग्जाम बहुत ही अच्छा गया, इतना इजी तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, उसी टाइम मम्मी मेरे को पता नहीं कितना प्यार आ रहा था, जूस लेके आ गई। उनको पता नहीं था हाँ क्लास में एग्जाम में, तो मुझे जूस देने आ गई। तो मैं थोड़ा सा मूव कर ली हाँ स्पेस को देने के लिए, और मेरा वहां पर रेड मार्किंग आ गया, मतलब फिर, क्रॉस दिखा दिया। मुझे पता नहीं था कि इतना मतलब इतना सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रिक्ट है। हाँ फिर क्या मतलब हुआ? ध्यान नहीं दिया, तो सर मेरा रेड मार्किंग आ गया ना, मैं डर गई कि क्या हुआ, थोड़ा भी स्टिफ नहीं हूँ। मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या टेक्नोलॉजी क्या घूम रहा है, रेड मार्किंग आ गया। तो मैं जैसे भी आंसर दे दी तो ऊपर में रेड मार्किंग दिखा रहा था। लास्ट तक? हाँ सर, मेरे को इतना टेंशन हो गया, तो मैं एकदम टेंशन ना स्टिफ। करिए, वो हमें सब पता है। ऐसे 5 बार अगर आप गड़बड़ करते, 5 बार, सर मैं इतनी स्टिफ आपने हो कितनी गई, कितनी बार ऐसे एकदम खड़े होके ऐसे आंसर देने लगे कि मैं नहीं हिलूंगी बाबा कुछ कुछ भी। फर्क नहीं पड़ता। 5 बार जब आप गलती करते, 5 बार जब आपको वार्निंग आती है ना, तब कुछ एक्शन होता। आपने तो एक ही बार किया, 4 बार तो रह अब गया। इसमें चीटिंग वाला चीज था भी नहीं, सच बोलती इतना इजी था, लेकिन सॉफ्टवेयर रियली एकदम स्ट्रिक्ट था। हाँ वो क्या है मतलब ना, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है नहीं, मैं कि आपका टेंशन में होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। 5 बार जब तक वार्निंग नहीं आएगी और फिर भी वो कोई गड़बड़ करेगा तभी कुछ होगा, अदरवाइज और कुछ सब नहीं। फोरगेट के लिए मैं भी बोलना चाहती हूँ, इतना रियली इतना गुड पॉइंट है। मेरा बेटा को मतलब खेलते हुए इतना तेज लग गया था पाँव में, इतना हाँ दर्द हुआ था। तो सर मैंने खाली लीवर थी और LI4 इतना जिनको अप्लाई किया, और अपने बेटे को एकदम उसको भी इतना बिलीव हो गया, वाओ मम्मी इतना इतना मैजिकल पॉइंट। 4 गेट आर द वेरी वेरी मैजिकल पॉइंट तो रियली। सर इतना इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा है। इतना इवन मैं तो आपको कहूंगा कि आपके सामने जैसे कभी कभी कोई पेशेंट आता है ना, बहुत दर्द हो रहा है और आपको समझ में नहीं आया इसको क्या ट्रीटमेंट दो, तो पहले दिन 4 गेट लगा के छुट्टी कर दो। फिर सच में पूरे दिन सोच लो अगले दिन क्या ने करोगे, अगले बोला दिन कि फिर। मैं पाँव जमीन में नहीं रख पा रहा हूँ, इतना हाँ हाँ दर्द था। तो जी मतलब वो जी। पॉइंट लगाते मतलब ऐसे लगा कि हाँ मैं आराम से चल पा रहा 4 हूँ। गेट बहुत फास्ट काम करता है। मैंने भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। पेशेंट जो बड़ा चीखता चिल्ला मतलब बोलता है कि गिर गए, बहुत दर्द हो रहा है, विद इन 10 मिनट्स वी सी वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स इन द 4 गेट। 4 गेट रियली वेरी गुड, सभी को यूज करना चाहिए जब जरूरत पड़े तब। और अभी सर फोन आया है कि 8:30 में 8 o'clock में रिजल्ट आउट हो जाएगा। हाँ तो सर तो वही बता देना, आप लोग पास हो जाओगे तो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, है यस ना? सर, वो अब तो मैसेज में डालना, अपना एक स्माइल वाला फोटो खींच के डालना। पक्का सर। है ना? मैसेज तो अभी क्या क्या होता है कि देखो कितने मैसेज तो पूरा पढ़ते हैं अपन। भर जाता मोबाइल। शुरू में 50-60 मैसेज पढ़ते हैं, फिर तो फिर मैसेज नहीं पढ़ते, लेकिन आपका मुस्कुराता वो चेहरा जरूर देखते हैं। अभी देख लीजिए इतना कॉन्फिडेंट है ना कि एकदम पास। वो पास रिजल्ट क्या सर, 99 मतलब इतना तो है ही कि हाँ 100, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरे ही लोग पास होने वाले हैं। जिन लोगों ने सिर्फ 5-7 दिन तैयारी की वो भी पास होने वाले हैं। आप लोगों ने तो बहुत मेहनत की है ना, कितने महीने मेहनत की है। तो सर आपका मेहनत है। आप लोग तो बिल्कुल, आप लोग तो बिल्कुल ऊपर वाली लिस्ट में आओगे, एकदम अपर लिस्ट में। थैंक यू। जी वेलकम। मैत्री जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ मैत्री जी। Hi, sir. Thank you actually for teaching so nicely. And I had a question. Yeah, 4 gates when you are putting liver 3 sedate किया तो BP patient मतलब low BP होने का chances है कि we can do for everyone safely. देखो जो लिवर 3 होता है, लिवर 3 क्या करता है कि लिवर 3 बिंड को कम करता है, थोड़ा सा कम करता है। हाँ.
तो ऐसे तो हमने बहुत सारे पेशेंट को लगाया है जिनको लो बीपी होता है, इतनी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन लिवर 3 हम हाई बीपी वाले पेशेंट को लगाते हैं तो उसका बीपी कम हो जाता है। हाँ, जब भी हमारे पास जब कोई लो बीपी का पेशेंट आता है तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो रहती है कि उसको रेंटिंग करो या इवन मेथड करो इंस्टेड ऑफ इवन मेथड, सैड करने के बजाय, क्योंकि लिवर 2 और लिवर 3 हार्ट और बीपी के बहुत ही बेहतरीन पॉइंट हैं। लिवर 2 और लिवर 3 मास्टर टुंग ने तो कहा है कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, आप उसको एक एक दिन छोड़ के बस लिवर 2 लिवर 3 लगा दो और कुछ ना लगाओ, तो भी कुछ दिनों में आप देखोगे कि उसका हार्ट और बीपी एकदम अच्छा होने लगा। इतने गजब के पॉइंट है ना। तो अगर कोई लो बीपी का पेशेंट आता है तो सबसे है कि उसको आप इवन मेथड करो तो ज्यादा अच्छा है। ओके, एंड फॉर द डायबिटीज पेशेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए तो लिवर 3 बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है कि लिवर के ऊपर फैट की लेयर आ जाती है ना। इसी कारण से लिवर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता, स्पेशली इन द डायबिटीज टाइप 2। तो लिवर 3 क्या होता है? लिवर 3 इज द ह्यूमिडिटी पॉइंट, तो वो उस फैट की लेयर को हटाता है, फैटी लिवर को कम करता है। सो लिवर 3 इज वेरी गुड पॉइंट फॉर हाई बीपी एज वेल एज द डायबिटीज। Okay, thank you. And sir, one query. Actually, I'm not able to download my scalp certificate. I don't know how to do it. वो क्या है कि आपका खुद का स्कैल्प डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? सर्टिफिकेट। अच्छा, सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेबसाइट। ओके ओके, मतलब मैंने सोचा कि जो मेमोराइज कर रहे हैं उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, हम काम करेंगे इसके लिए। बहुत सारे लोगों एक्चुअली मैंने जब मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि अभी हम लोग जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, आपको जो हम 100 क्वेश्चन कराते हैं, 100 क्वेश्चन के लिए पहले हमें पूरा लिखना पड़ता है, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ता है। उसमें काफी जो ऑन स्टेज जो काम किया है, उसके अलावा ऑफ स्टेज भी बहुत काम हुआ है ना। तो अभी उसका जो कुछ काम है, मतलब अभी थोड़ा उसका भूत उतरा नहीं है। 1-2 दिन लगेंगे उसको पूरे भूत को उतरने में, और माइंड थोड़ा सेटल होगा तब वो काम सब चालू होगा, है ना। इसलिए मैंने आज की छुट्टी नहीं की। मैंने कहा कि वो जब 1-2 क्लास थोड़ा लीक से हटके लेंगे ना, तब दिमाग थोड़ा सेटल होगा। अभी आप कराते कराते पूरा एग्जाम 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 वाला पूरा एक मूड हो गया है ना। क्योंकि सुबह से शाम तक क्वेश्चंस लिखना, फिर क्विज कराना, फिर प्लानिंग करना कि लोगों को कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आएगी, फिर उसकी प्रिपरेशन करवाना, तो पूरा 1 महीने से ऐसा चल रहा था, है ना। तो अब 1-2 कुछ दिन रुक जाइए, फिर करते हैं सर्टिफिकेट का प्रोग्राम, है ना। डोंट वरी फॉर सर्टिफिकेट। ओके मोना जी, यस मोना जी। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई मीन देयर आर नो वर्ड्स बताने के लिए। कुछ आप जैसे अभी बता रहे हो ना, एग्जाम का भूत उतरा नहीं है करके, सच्ची में ऐसी हालत है। कल जो बेहोश पड़े थे, आज भी मेरी हालत ऐसी ही है कि मतलब इतने बचपन से जो एग्जाम्स देते थे, लास्ट एग्जाम के दिन जो रहता था, इतना बर्डन निकल गया। 1 साल से हम लोगों का कब होगा कब होगा कब होगा करके हुआ एंड फाइनली इट इज डन एंड इट्स ऑल योर क्रेडिट सर। वो एक्चुअली क्या है ना कि वो एक साल ये पोस्टपोन हुआ इसी के कारण है कि आपकी तैयारी इतनी शानदार हो गई कि आपको लग रहा है कि मतलब 100 में से 100 नंबर आएंगे, और बाई चांस एक आध गलत हो गया तो हो गया बाई चांस, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के तो 1 या 2 ही गलत होंगे, इससे ज्यादा गलत नहीं होंगे होने के चांसेस। राइट सर। एक्चुअली हम लोग ऐसे बैठ के लिटरली मतलब रिवाइज कर रहे थे, चलो पेपर है 3 घंटे का है, और ऐसा था सर कि एग्जाम घर पे बताया है, तो लोग मतलब फैमिली ऐसे प्रिपेयर थी कि चलो मम्मी एग्जाम देने वाली है इसलिए आज कुछ नहीं बनाएंगे। मेरा 15 मिनट में हो गया, लेकिन मैं उठी नहीं। मैंने कहा नहीं यार, आप लोग करो अपना काम, मैं परेशान आराम से एंजॉय कर रही थी एग्जाम। आई रियली एंजॉयड द एग्जाम सर। एंड तो वही मैंने देखा, देखिए बहुत सारे लोगों का 10:30 को मैसेज आया, सर आई एम नर्वस। मैं मैसेज नहीं देख पाया क्योंकि मैं खुद वो हेल्पलाइन नंबर में था ना, तो लोग मुझे कॉल कर रहे, मैं उसकी प्रिपरेशन में था। और 11:30 को 1 घंटे बाद सर मजा आ गया। मतलब मैंने दोनों मैसेज एक ही साथ देखे, आई एम नर्वस और मजा आ गया। नहीं सर, दोनों था। एक्चुअली एग्जाम का था कि वो थोड़ा टेंशन था, लेकिन इतना इजी था कि इतना रिलीफ आ गया, इतना रिलीफ आ गया। और इजी क्या होता है, देखो इजी आपकी तैयारी होती है ना, तो वो चीज आसान लगती है ना। अभी मुझे तो एक व्यक्ति ने ऐसे भी फोन किया है दिल्ली के, सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा तैयारी की थी? नहीं। अब तैयारी नहीं की तो कहाँ से समझ आएगा। मतलब बच्चों जैसे एग्जाम बहुत सिंपल था, लेकिन आपने तैयारी जब ग्रेजुएशन की हो
और आपको कोई 10th का एग्जाम दिलवाए तो आपके लिए सरल ही होगा ना। आप लोगों ने तो एक बहुत ही अपर लेवल की तैयारी कर ली थी, आप लोगों की तैयारी थी हाई ग्रेड की थी, तो आपको लो ग्रेड में अपीयर होने को मिला, तो आपके लिए बच्चों वाला खेल था वो। बच्चों वाला खेल आप ही ने बना दिया सर। सच्ची में इस तरह की तैयारी शायद मैं अपने कॉलेज या स्कूल में करती तो शायद बहुत अच्छा लगता। पता नहीं आज कहाँ होते, मतलब बहुत कहीं, है ना। सच्ची में सर, लेकिन एग्जाम का नाम सुन के जो फोबिया रहता था बचपन से वो पूरा निकल गया। सच्ची में आपने जो बोला था फेल होना मुश्किल होगा, तो बचपन में सुन के आते थे यार पास होना मुश्किल होगा, पास होना मुश्किल होगा, तंग आ गए थे। ये दिस शुड बी द स्टेटमेंट, फेल होना मुश्किल होगा। दिस मेड अ ह्यूज चेंज इन मी, इट वाज वंडरफुल एक्चुअली। और दूसरी चीज 4 गेट्स का मैं बता दूं सर, आई लिटरली फेल डाउन, और रोड पे जो मैं खुद ही गिर गई थी, और वेट ज्यादा हो जाने की वजह से लोग पूछ रहे थे कि शायद फ्रैक्चर हुआ है, उठा के लेके आए थे मुझे घर पे। और जस्ट एक दिन, बस 2 दिन में आई एम टोटली नॉर्मल। जो पूरी सोसाइटी बोल रही थी यार इनका तो फ्रैक्चर हो गया है करके हॉस्पिटलाइज कराना है, मैंने सिर्फ 4 गेट लगाया और सुजोक में करस्पॉन्डेंस पे लगाया था और कुछ भी नहीं किया। दूसरे दिन जो मैं उठी थी मैं सोच रही थी यार क्या हो गया है, कुछ भी पता नहीं, मतलब बॉडी इतना हल्का हो गया है। जनरली गिरने के बावजूद जो पेन्स होते हैं एक्स्ट्रा, ऐसे पीठ पे कमर पे थोड़ा पेन आता है, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वंडरफुल सर, 4 गेट्स आर अमेजिंग, अमेजिंग। 4 गेट्स आर रियली अमेजिंग। आप लोगों ने इसको इतनी बार अमेजिंग बोल दिया ना, अब जिसको नहीं पता होगा उसको भी याद हो जाएगा सर। और एक हाँ सर, सच्ची में, क्योंकि 4 गेट्स मैं सबको अपने घर पे अपनी बेटी के लिए लगा रही हूँ। पीसीओडी प्रॉब्लम है, तो पीरियड्स बहुत टाइम ले रहा है आने के लिए। तो उस दिन आप बता रहे थे कि वेरेवर देयर इज लिवर चीज स्टैग्नेशन इट क्लियर्स ऑफ करके, पता नहीं उस दिन लग रहा था ये इस लड़के का क्या करूं, कुछ भी करूं तो भी कुछ शुरू होता ही नहीं, ये कहाँ अटक रहा है, कहाँ अटक रहा है। तो फिर लगा चलो 4 गेट्स लगा देते हैं। और उसके पैरों में भी चोट लगे थे काफी महीनों से, जो कि हील नहीं हो रहे थे। तो ये लगाने के बाद उसके पैर के जो घाव पहले दर्द थे वो भी ठीक हुए। एंड कंपैरेटिवली मतलब ये पीरियड्स का भी इसके साथ मैंने ये अपना मास्टर टूम के पॉइंट्स, वो गायनेकोलॉजिकल पॉइंट्स है ना सर, तो वो भी एक्स्ट्रा लगा दिया था। इमीडिएटली नेक्स्ट डे पीरियड शुरू हुए जो 3 महीने से रुके हुए थे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। That was really wonderful sir. And और जस्ट एक पूछना था, ये 4 गेट्स हम लोग इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है कि आज भी लगा देते हैं क्या, कुछ स्टैग्नेशन है तो निकल जाएगा। और उसके साथ स्टमक 40 फॉर क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ डैम्पनेस, ये कॉम्बिनेशन में हम लोग लगा सकते हैं या नहीं, कब तक लगा सकते हैं, ये पूछना था। अगर आपको डैम्पनेस के लिए लगाना है तो बेहतर है स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 लगाइए। हाँ, स्प्लीन 6 एंड स्प्लीन 9 इवन मेथड कर दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे डैम्पनेस को निकालने वाले पॉइंट्स हैं। और स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 हम जानते हैं कि हमारी ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, डैम्पनेस को भी निकालते हैं, ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं, तो उनको ज्यादा प्रेफर करिए। स्टमक 40 आप तक प्रेफर कर सकते हैं जब आपको लगे कि कुछ ज्यादा ही फ्लेम जम गया है, नहीं तो स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 आर बेटर, वो ज्यादा अच्छे हैं। ओके, तो जनरली मैं क्या है कि सुजोक के में पॉइंट्स डालती हूँ और दाने ही लगाती हूँ, आई एम नॉट इवन पुटिंग नीडल, तो मेथी का दाना डालती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, स्प्लीन 6 स्प्लीन 9 इज वन आर वंडरफुल पॉइंट, आप वो लगाते रहें जी, बिल्कुल। और ये लिवर 4 गेट्स का कब तक लगा सकते हैं, या फिर इज देयर एनी रिलीफ आ गया है तो रुक जाए, या फिर 1-2 दिन लगा के देख सकते हैं कि इंटरमिटेंटली आप लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोगों को फिजिकल इमोशनल थोड़ा बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इंटरमिटेंटली बीक बाद में भी ठीक होने के बाद भी बीक में एक बार 4 गेट लगाया जा सकता है। लगाए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए अब हम मिलते हैं परसों। सो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग द सेशन नाउ।